Now let us first of all understand the receipt and payment account, the performer and the items which are included in this account. So these are the various items which are shown on the payment side of receipt and payment account. Now one thing which is required to be remembered is the account does not show any non-item like depreciation. Now let us take one example. First of all, we need to write the opening balances. Now cash is having 10,000 and bank is having an opening balance of 72,000. Partnership accounts. As you have read in your previous classes, there are some limitations of sole proprietor. For example, limited capital, limited resources, and limited managerial capacity. To overcome those limitations, the new form of business which emerges is known as partnership. Now let us understand what is partnership. Partnership is when two or more persons join their hands to set up a business and share its profits and losses. They are said to be in partnership. Take case 1 when capitals are fixed. तो दो अकाउंट्स हम इसमें बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर वाज ओपनिंग बैलेंस इन प्राची अकाउंट एंड इन रिमशा अकाउंट. तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 प्राची का और 1,00,000 रिमशा का. इश्यू ऑफ शेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी to grow and expand. In this session, we are going to discuss how the accounting treatment is done with respect to issuance of shares. Non-cumulative preference shares. These are the shares on which we do pay the fixed amount of dividend, but these are not accumulated if there is inadequacy of the profit. Forfeited shares. Forfeited shares are when a shareholder failed to pay the amount due to him or her. The company has all the rights to forfeit or cancel the shares. इन शेयर्स को फोरफीट करके जितना भी अमाउंट कंपनी के पास पेड अप कैपिटल में है विद रिस्पेक्ट टू दी शेयर्स ओनली, वो अमाउंट फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और जो अमाउंट हमें अभी नहीं मिला है वो अमाउंट कहलाता है कॉल्स इन एरियर. हमने शेयर्स का एक्सेस मनी वापस कर दिया. अब जो अलॉटमेंट हमने कर दी, अलॉटमेंट मनी उन शेयर्स के ऊपर ड्यू हो जाती है. सो व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, आवर एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड व्हेन वी विल रिसीव फर्स्ट कॉल, आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. अब यहाँ पे हमें 1,00,000 की कॉल ड्यू हुई थी. 1,00,000 का 1,00,000 मनी ही हमें मिल जाना है क्योंकि जितना एक्सेस मनी था वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया. उसके बाद हमारे साथ कोई भी एक्सेसिव मनी नहीं बचता है. इसका मतलब फर्स्ट कॉल में हम पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए रिसीव करेंगे. इशू ऑफ डिबेंचर्स. नाउ डिबेंचर्स हैज वेरियस टाइप्स and these types are categorized from the viewpoint of the security, tenure, convertibility, coupon rate and registration. When the debentures are issued for the consideration other than cash, कई बार हम कुछ मशीनरी खरीदते हैं या हम किसी की कुछ सर्विसेज लेते हैं और उसको उसके बदले में हम डिबेंचर इशू कर देते हैं. It can be the part of the payment or it can be against the full payment. When the debentures are issued at a premium and redeemed at a premium. It means that debentures can be issued at par, at discount and premium, and debentures can be redeemed at par or at premium. That how many shares will be issued? Amount which becomes payable to debenture holders is rupees 5 lakh. और क्योंकि हमने उनको 2% प्रीमियम भी देना है तो 2% on 5 lakh will become 10,000. इसका मतलब टोटल हमने डिबेंचर होल्डर्स को कितना अमाउंट देना है? 5,10,000. इस अमाउंट में से 60% के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने शेयर्स हमसे लेने हैं. सो 60% ऑफ होल्डर्स मीन्स 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60% 3 लाख. सो शेयर्स जो हमने इशू करने हैं वो अब कितने इशू करने हैं? हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एक डिबेंचर के पीछे 5 शेयर्स देने हैं. कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 15,000 और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का. तो हमने टोटल कितने के शेयर इशू किए? 1,50,000.
इसका मतलब 3 लाख की पेमेंट करते हुए 1,50,000 के शेयर्स इशू किए गए। सो 1,50,000 जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो क्या हो गया, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। सो प्रीमियम आ गया यहाँ पे 3 लाख माइनस 1,50,000, 1,50,000। सो सबसे पहले जब अमाउंट ड्यू होती है हम क्या एंट्री पास करते हैं, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जैसा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, 10% डिबेंचर्स के आगे हम लिखेंगे 5 लाख, प्रीमियम हुआ 10,000 और टोटल डिबेंचर होल्डर्स को कितना अमाउंट बना, 5,10,000।